All right, let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. We are live now on Facebook. I'm Dr. Amna Najam, FCPS Gynae and OMS, and currently working as an SR in Lafis Medical College and Hospital. Inshallah, soon to be assistant professor by the end of this month. And I'll be your mentor for the upcoming clinical exam, Viva Extended Talks exam for both FCPS as well as MCPS. I have been associated with teaching both the undergraduates as well as both postgraduate students for many years now. And for the past 2 years, I have been associated with MedExam. And with MedExam, we have conducted many preparatory courses for FCPS and MCPS, both written and clinical Viva courses. And as you all know that for the last 2 attempts, FCPS has changed its pattern from long case to extended short cases. So we have also conducted 2 sessions, 2 batches for the preparatory course of those short cases and extended talks exam. And Alhamdulillah, we have got a very good result and more than 90 to 95% pass rate hai hamara, and I'm very happy with that. And the way the MedExam team has been supporting me, and we all, the teamwork, we have been conducting these courses. And today, in this webinar, I'm going to tell you about something about exam orientation and also about our course introduction. So without any further delay, let's begin. I hope this is visible to you. Okay, I have given you my introduction. So let's start. Basically, exam FCPS ka aapka written, to as you all know, it is comprising of 2 papers, paper 1 and paper 2, both of MCQs of each of 100 questions. There is a separate course with MedExam expert for the preparatory course for the written exam. So I'll be dealing more with the extended talks preparatory courses. So that's why I'll be giving you information about the exam orientation in the extended talks scenario. So as you all know, long case pattern have been changed to extended talks. So क्या आता है उसके अंदर, किस किस्म के stations होते हैं? There are 4 or 5 domains जिनके stations होते हैं. Number 1, there will be short cases. In short cases are like mini vivas, small vivas in which you have to perform the scenario is given to you and you have to perform. Either it can be a case-based discussion with the examiner, or it can be a role player based simulated patient based task given to you. The important point is at the end of each short case scenario, you'll be given the task and you have to perform according to that task. Randomly, you do not have to give the information about whatever information you know about that scenario on the whole. जो task दी गई है, you have to be very focused on that task and you have to take a focus history and you have to take focused information gathering. We'll be discussing that later on. And उस focused task के accordingly you have to solve that scenario. I'll be discussing in detail how can you do that and how the marks distribution is. So in short cases, what is case-based discussion? Case-based discussion, there will be no stimulated patient, there will be no role player, there will be directly the candidate faces the examiner's questions. And basically the examiner assesses your knowledge about the whole case scenario and how you gather information. Sometimes the history points are asked from you directly. How will you gather information? You do not have to be, there will be no role player. You do not have to be asking the in Urdu, what will you asking from the role player, but you will be just mentioning the points. अब यहाँ पर जो लड़कियां कंफ्यूज होती हैं वो ये चीज होती है कि जब रोल प्लेयर वाला सिनेरियो होता है तो उसमें आपने सिंपल वर्ड्स में इन मतलब विदाउट यूजिंग मेडिकल टर्मिनोलॉजी, जैसे आप एक पेशेंट से बात कर रहे होते हैं वो वर्ड्स यूज करने होते हैं. बट when you are in a case-based discussion with an examiner, you have to be very, very precise and you can use medical terminology and you do not have to exactly translate the Urdu lines into English lines. So examiner के सामने आपने points में बोलना होता है.
फॉर एग्जाम्पल अगर सेकेंडरी एमेनोरिया का केस है, लेट्स सी, ठीक है, सो यू विल बी टेलिंग दैट आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, signs and symptoms of hyperprolactinemia. I will be asking about presence of TB. I will be asking about thyroid dysfunction questions, heat and cold intolerance, a little bit symptoms, ठीक है, but you will not tell the whole ट्रांसलेटेड उर्दू ट्रांसलेशन से इंग्लिश ट्रांसलेशन करके लॉन्ग लॉन्ग लाइंस जो आप पेशेंट से जैसे सिंपल करके पूछते हैं, एग्जामिनर से कम्युनिकेशन वैसे नहीं करनी होती. तो यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन सॉल्विंग दीज टू डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियोस. एक ही सिनेरियो आपको अपने आपस में जो प्रैक्टिस करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, इवन हम कोर्स में भी आपको करवाएंगे, उसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी बेसिकली दैट इन अ रोल प्लेयर सिमुलेटेड टास्क पेशेंट से बात करना, पेशेंट से कम्युनिकेट करने के मार्क्स अलग हैं, उसका स्टाइल अलग है. एग्जामिनर से वही इंफॉर्मेशन वही बात आप बात कर रहे हैं तो उससे टू द पॉइंट क्रिस्प और पॉइंट्स में बात करते हैं और उसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं. ठीक है, सो इंशाल्लाह जब हम ये डिटेल में करेंगे तो देन यू विल कम टू नो कि व्हाट्स द डिफरेंस एक्चुअली. Then there can be procedure demonstration skills. You are all familiar with these stations. Demonstration skills like you can have shoulder dystocia demonstration skill, maternal resuscitation, neonatal resuscitation. I'll be giving you the list of those. Okay, क्या demonstration skills आ सकते हैं. जो skill based stations हो सकते हैं आपके. Then there will be examination on mannequin. अभी मैं इस पे डिस्कशन करती हूँ. And then they can be counseling stations. Counseling stations involve breaking bad news, your empathetic approach, the way you approach the patient, the way you talk to the patient, and obviously it also assesses your basic knowledge, but how you tackle the various situation. The patient is agitated, obviously simulated patient है, actual patient नहीं होता. बाज़ simulated patient को सिखाकर बताया हुआ होता है. Simulated patient can be anyone, any medical person or non-medical person, but वो actual patient नहीं होता तो उसको emotions भी बताकर बिठाया होता है कि आपने यहाँ पर रोना है, यहाँ पर आपने agitation show करनी है. So आपकी काउंसलिंग स्किल्स में सिचुएशन हैंडलिंग का मार्क्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. ठीक है, आपको उसको कैसे आप उसको लेकर चलते हो पेशेंट को, और सिंपल ये नहीं कि उसको बस इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट कर दो कि ये बस आपने करना है, हम आपको ऐसे लेकर चलेंगे. अगर पेशेंट रो रही है, आपका टाइम वेस्ट कर रही है, आपने उसको कम टाइम में टैकल कैसे करना है. ऑब्वियसली ओपीडी में एक पेशेंट आता है तो आप 1 घंटा तो नहीं एक पेशेंट को लगाते ना. सो ये सारी आपकी मैनेजमेंट भी आपकी चेक हो रही है, आपकी ओवरऑल सिचुएशन हैंडलिंग भी चेक हो रही होती है एग्जाम में. ठीक है, सो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पेशेंट के साथ एम्पैथेटिक अप्रोच, आप एक बड़ी चीज को लॉन्ग, जो पेशेंट लंबा कर रही है अपनी बात को या बात को इधर उधर लेकर जा रही है, उसको फोकस पे कैसे लाते हैं विदाउट हर्टिंग हर फीलिंग्स, और आप उसके साथ एम्पैथेटिक कैसे होते हैं. काउंसलिंग स्किल्स में ये सब चीजें आती हैं. ठीक है, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन देना काफी नहीं होता. सो ये भी हम इंशाल्लाह करेंगे, प्रैक्टिस के साथ करेंगे. अच्छा, अब जो नई चीज तो खैर नहीं है, हम अंडरग्रेड्स में तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन TOS की इस दफा आपकी आई थी. इस दफा जो दो दफा हो चुका है एक्सटेंडेड टॉक्स आप लोगों का FCPS में. फर्स्ट अटेम्प्ट में तो चूंकि नया नया था तो CPSP ने ऑल टुगेदर लॉन्ग केसेस को अबैंडन कर दिया और शॉर्ट केसेस आए थे सिंपल. ठीक है, और स्किल्स आई थी. लेकिन ऑब्वियसली विदाउट एग्जामिनेशन ऑन अ पेशेंट या ऑन अ मैनिकन CPSP कैन नॉट गिव यू अ डिग्री ऑफ FCPS. ये हमेशा याद रखें, एग्जामिनेशन इज अ बेसिक इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर असेसमेंट. सो CPSP ने अब ये किया है कि मैनिकन्स कुछ बाय किए हैं, मजीद और भी बाय हो रहे हैं. ठीक है, CPSP एक पूल बना रहा है ऑफ रोल प्लेयर्स एज वेल. मुख्तलिफ हॉस्पिटल से जो एक पेड रोल प्लेयर्स हुआ करेंगे हर दफा, वो मतलब केसेस बेस्ड, किसी को फॉर एग्जांपल डायबिटीज है तो वो डायबिटीज का एक पेशेंट हर दफा बुला लिया करेंगे. मुख्तलिफ, एक नहीं बहुत सारे, लेकिन लाइक एक रोल प्लेयर का एक पूल बन रहा है समझ लें. और इसी तरह से आपके मैनिकन्स का भी एक CPSP बाय कर रही है और पूल बन रहा है. ठीक है, सो इस दफा इन्होंने क्या किया था, TOS की थी. TOS की कुछ नहीं है, परेशान नहीं होना. ये क्या चीज होती है, लिंक्ड होती है चीज. टीम ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन है. सिंपल करके बताऊं तो एक लिंक स्टेशन है, जिस तरह आपका लॉन्ग केस एक बड़ा 30 मिनट्स का पहले होता था, उसी को 2 या 3 स्टेशन में डिवाइड कर दिया जाता है. इस दफा CPSP ने क्या किया था कि एक ही सिनेरियो देकर तो उसका हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन एक स्टेशन पे आपने करनी थी, और उसी पेशेंट का फिर वाइवा और डिस्कशन, केस डिस्कशन आपकी सेकंड स्टेशन पे थे, यानी कि 2 स्टेशन लिंक्ड थे आपस में. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड TOS.
अंडर ग्रेड्स में या CPS भी ऐसे भी कर सकती है कि अंडर ग्रेड्स में भी हम ऐसे करते हैं कि हम 3 स्टेशन रखते हैं आमतौर पर। हिस्ट्री का एक स्टेशन होता है, एग्जामिनेशन का एक स्टेशन होता है, और वाइवा का एक होता है। तो बी प्रिपेयर्ड आपको किसी भी तरह आ सकता है। इस दफा CPSP ने जो पैटर्न अडॉप्ट किया था उसमें 2 स्टेशन थे, ठीक है। हिस्ट्री एग्जामिनेशन आपने 10 मिनट में करनी थी। अब क्या इंपॉर्टेंट बात है कि उस 10 मिनट में आपने लंबी लंबी हिस्ट्रीज नहीं लेनी। हिस्ट्री के आपको बहुत अच्छे टेम्पलेट्स आने चाहिए, शॉर्ट क्रिस्प फोकस्ड हिस्ट्री। फोकस हिस्ट्री जो कि सिर्फ उस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से रेलिवेंट, उसकी डीडीज जो आपके जहन में आती हैं, वो डीडीज आप कैसे रूल आउट करोगे। वो टेम्पलेट्स हम आपको देंगे भी, साथ उसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। वो टेम्पलेट्स बहुत हेल्पफुल हैं, आपने उनका याद करना, उनको रट्टा भी लगाना है कि आपने विद इन 5 मिनट्स, 5 to 6 मिनट्स कैसे आपने उन सारे के सारे क्वेश्चंस को पूछना है, ठीक है। पेशेंट ऑब्वियसली मे नॉट बी क्विक टू आंसर, पेशेंट हो सकता है स्लो स्लो आंसर कर रही हो, तो आपको जब तक कट 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 सारे 1 2 3 4 पॉइंट्स याद नहीं होंगे, आप उससे हिस्ट्री में इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं कर सकते। वहां बैठकर आपने एग्जाम में क्या करना होता है कि जो पॉइंट्स आपने सोचे में ऑलरेडी आपको पता है कि इस केस सिनेरियो से रिलेटेड ये हिस्ट्री में पॉइंट्स होते हैं, फोकस हिस्ट्री में आपने सिर्फ ये सोचना होता है एग्जाम में बैठकर कि इन 10 पॉइंट्स में से इस मरीज पर मैंने कौन से 5 पूछने हैं, कौन से नहीं पूछने। वहां पर एग्जाम आपकी नर्व्स का है कि आपको याद इतना अच्छा हो कि उधर जाके आपने सिर्फ, आपका जहन ये सोच रहा हो कि इन 10 पॉइंट्स में से इस मरीज पर क्या रेलेवेंट है, क्या नहीं है। जो रेलिवेंट नहीं है, अगर आप मशीन की तरह रट्टे में वो बोल जाओगे तो आपका बहुत बैड इंप्रेशन पड़ेगा कि सिर्फ याद करके आएंगे। सो ये तभी होगा, आपका माइंड उस वक्त तभी सोचेगा जब आपको बैकग्राउंड नॉलेज आपके माइंड में बहुत अच्छी फीड हो। सो टेम्पलेट आपको बहुत अच्छा पता होना चाहिए, अपने निमोनिक्स के साथ याद करें, हम आपको देंगे भी, आपको करवाऊंगी भी मैं स्टेशन में पूरा, सारे स्किल स्टेशन, सारे इसके हिस्ट्री के टेम्पलेट्स आपको हम देंगे भी। फिर उनकी प्रैक्टिस आपने ऐसी करनी है कि आप पेशेंट ओरिएंटेड आप उनमें से क्वेश्चंस करें, ठीक है। सो हिस्ट्री हो गया, और एग्जामिनेशन भी आपने उसी उसी 10 मिनट में करना है। अच्छा, इस दफा इन्होंने क्या किया था CPSP ने कि हिस्ट्री जो थी वो तो सॉरी, एग्जामिनेशन जो था, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एंड अगर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की बात हुई है, वो ऑब्वियसली आपको टास्क में दिया होगा कि आपने क्या करना है, ठीक है। वो तो पेशेंट के ऊपर था, एक्चुअल पेशेंट था। हिस्ट्री में भी एक्चुअल पेशेंट था, एग्जामिनेशन में भी एक्चुअल पेशेंट था। लेकिन लॉन्ग केस से शॉर्ट केस करने में CPSP का सबसे इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट ही ये था उस वक्त कि इट्स नॉट एथिकली राइट कि आप बहुत से पेशेंट्स के ऊपर एग्जामिन करें और PV करें उनकी ना। सो इस दफा CPSP ने उसको ऐसे कम्बैट किया कि जो एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का जहां तक पार्ट था वो तो पेशेंट के ऊपर किया, और थोड़ी बहुत पेशेंट की मतलब हिस्ट्री ऑब्वियसली उसी पेशेंट से पूछी, लेकिन वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं किया पेशेंट के ऊपर। उसकी फाइंडिंग्स आपको बेसिकली एग्जामिनर से आप मांगते हैं कि मुझे वजाइनल एग्जामिनेशन में या बायोमेनुअल एग्जामिनेशन में ये चीजें चाहिए, तो एग्जामिनर विल गिव यू द फाइंडिंग्स, ठीक है। सो उस पेशेंट पर बार बार PV नहीं होती। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये TOSCI के अंदर पेशेंट एक के बाद चेंज हो जाता है, एक या दो मतलब सिनेरियोस के बाद पेशेंट चेंज हो जाता है। तो यू कैन नॉट से कि पहली लड़की के पास अगर आपकी नजर पड़ गई, अच्छा वो आपको लग रहा है कि अच्छा ऑब्स्ट्रक्टिव पॉलिसिस का वाइवा चल रहा है या इस तरह, तो आपकी बारी आने तक वो पेशेंट चेंज हो गया होगा, क्योंकि वो पेशेंट तंग पड़ जाते हैं। बेसिक मकसद एक्सटेंडेड टॉक्स का यही था कि एक पेशेंट जो है उसके ऊपर बहुत सारे लोग 40-50 पीपल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन कर रहे होते थे, तो पेशेंट तंग आ जाता था। तो अब उसका हल ये निकाला है कि आपने हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन सिर्फ पेशेंट के ऊपर करना है। वजाइनल एग्जामिनेशन जो है वो उसकी फाइंडिंग्स आप पेशेंट एग्जामिनर से पूछते हैं, उनके पास फाइल होती है, वो आपको फाइंडिंग्स बता देते हैं, ठीक है। अभी तक तो ये है, लेकिन डू एक्सपेक्ट कि CPSP ने मैनिकन्स जो हैं पेल्विक एग्जामिनेशन के मैनिकन्स भी ऑर्डर किए हुए हैं, तो ये हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपके पास एग्जामिनेशन वजाइनली आपने मैनिकन पे करके बताना हो, ठीक है, डमी के ऊपर। सो ऑब्वियसली आपकी स्किल क्या, मतलब किस तरह से अप्रोच करते हो, लाइटिंग अरेंज करते हो कि नहीं करते हो, लुब्रिकेंट लगाते हो कि नहीं, पेशेंट को कंफर्टेबल करते हो, उससे पूछते हो कि नहीं, ये सारी बातें आपसे। और ऑब्वियसली जो मैनिकन्स खरीदे जाएंगे उनमें फाइंडिंग्स वाले मैनिकन्स होंगे, ठीक है। कुछ हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी मतलब तकरीबन सारी टीचिंग हॉस्पिटल्स में मैनिकन्स मौजूद हैं, लेकिन अक्सर होते हैं वो सिंपल वाले मैनिकन्स होते हैं, क्योंकि अंडर ग्रेड्स के लिए होते हैं ना। सो पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए विद फाइंडिंग्स, यानी कि फाइब्रॉइड वाला मैनिकन, फ्रोजन पेल्विस, फ्रोजन यूट्रस वाला मैनिकन कैसा होगा, ठीक है। पॉलीपोडियल किसी से ग्रोथ आ रही होगी, किसी से यूवी प्रोलैप्स, तो ये वाले मैनिकन CPSP मंगवा रहा है, और हो सकता है कि मार्च तक आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये चीजें आए। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने अपने हॉस्पिटल्स में जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप इस चीज को मैनिकन के ऊपर भी PV करने की प्रैक्टिस करें, बायोमेडिकल एग्जामिनेशन, स्पेकुलम डालने की, क्योंकि स्पेकुलम
कि बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इनके मार्क्स होते हैं, अपने लेबिया पार्ट किए हैं कि नहीं, आप सेक्युलम वर्टिकली डाल रही है, ओब्लिकली डाल रही है, हॉरिजॉन्टली डाल रही है, किस तरह डाल रही है, अपने पेशेंट से पूछा, उसको कंफर्टेबल किया है कि नहीं, क्या कमांड दे रही है पेशेंट को कंफर्टेबल करने के लिए, ठीक है, आपको जे शेप में जा रही है कि नहीं, आप पेशेंट को पेन तो नहीं कर रही है, और ऑल दैट। ऑब्वियसली जो मैनिकन होता है उसके अंदर सर्विक्स मौजूद होता है, आपने सर्विक्स विजुलाइज करवाना होता है एग्जामिनर को, ठीक है। तो इस हद तक सारी एग्जामिनेशन आपको आनी चाहिए। तो अभी से आप जब तैयारी करें तो इसकी प्रैक्टिस करें कि मैनिकन्स के ऊपर स्पेकुलम कैसे डालें और उसको उसकी प्रैक्टिस कैसे होनी है और एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो टीओस की इज सिंपली लिंक्ड स्टेशन, ठीक है, जिसमें लॉन्ग केस को समझ लें 2 या 3 स्टेशन में डिवाइड कर दिया। और ऑब्वियसली वाइवा तो आपको पता है, ये फिर उसी केस का डिटेल्ड वाइवा एक स्टेशन के ऊपर होता है। पहले डीटीज डिस्कस होती है, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, बेसिकली कि मैनेजमेंट में आपने क्या करना है। सो इन सब एक्सटेंडेड टॉक्स की जो टेंटेटिव डेट्स हैं, मोस्ट प्रॉब्ली अभी एग्जैक्टली डेट तो नहीं आई क्योंकि रिटर्न के एग्जाम की बात आती है। रिटर्न आपका नेक्स्ट टाइम फरवरी में है, तो फरवरी में अगर मोस्ट प्रॉब्ली मार्च या अप्रैल में आपका वाइवा होगा, ठीक है। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेशंस आपकी जो लिस्ट है वो आपने क्या क्या प्रिपेयर करनी है। तो डेमोन्स्ट्रेशन या स्किल बेस्ड स्टेशंस होते हैं, उनमें कौन कौन से आ सकते हैं? ब्रीच एग्जामिनेशन, ब्रीच की डिलीवरी, ठीक है, वो आपसे करवाई जा सकती है। ईसीवी करवाई जा सकती है, इंटरनल कोडालिक वर्जन कराई जा सकती है। शोल्डर डिस्ट्रोशिया का स्टेशन जरूर आता है हेल्पर निमोनिक के साथ। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी बोथ वैक्यूम एंड फोर्सेप्स, यूनिटल मैटरनल रिससिटेशन, पीपीएच का ड्रिल प्रोटोकॉल पूरा, बी लिंच कैसे लगाना है, स्टेप वाइज डीवैस्कुलराइजेशन, ओवेरियन वेसल्स को कैसे करना है लाइगेट, यूट्राइन को कैसे करना है, इंटरनल को कैसे लाइगेट करना है, ठीक है। और ऑब्वियसली सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी के स्टेप्स मॉडल पड़ा होता है, उसमें सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी आपने करके दिखानी होती है। इसी तरह गायनी की बात करें तो उसमें कॉन्ट्रासेप्शन, मैकपील आ सकता है, मैकपील से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको उसको आसान होता है बहुत, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने कभी देखा हुआ नहीं है तो फिर आपके लिए एकदम से मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज मैकपील में आपको फिर रट्टा नहीं लगाना पड़ता, कैटेगरी 1 2 3 4 क्या है, जो यूके मेट क्राइटेरिया का है की कैटेगरीज है, ठीक है। अगर आपको वो मैकपील यूज करना आता है तो आपको इजीली पता लग जाता है कि ये वाली कंडीशन जो है कैटेगरी 3 में आती है, 4 में आती है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने केस की कोर्स के दौरान। बैकफील आ सकता है, उसके अलावा कॉपर टी की इंसर्शन, मायरेना की इंसर्शन, मायरेना का काउंसलिंग स्टेशन आ सकते हैं कि मायरेना की ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स और कैसे जो है वो आपने मतलब उसके व्हाटएवर बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या है, इस किस्म के क्वेश्चन हो सकते हैं। सबडर्मल इम्प्लांट, जिडेल इंसर्शन। अच्छा ये याद रखें, जो स्किल स्टेशन होता है ना, उसमें स्किल के मार्क्स के अलावा जो आगे पीछे क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके भी मार्क्स होते हैं। जो जो लड़कियां मार्क्स लूज करती हैं, आप सिर्फ स्किल याद करके जाते हो, आपको ये नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल जिडेल इंसर्शन आई है तो आपको इंसर्शन तो आती है बहुत अच्छी, परफेक्टली आपने देख ली, लेकिन छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं कि सिंगल रॉड है, डबल दो रॉड्स हैं, एक रॉड के अंदर कितना लीवोनॉर्गेस्ट्रल है, ठीक है, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, पेशेंट को क्या बताएंगे, ये छोटी सी ड्रेसिंग जो आप लगा रही है कितने दिनों बाद रिमूव होगी। तो इस किस्म के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आधे मार्क्स उनके होते हैं। सो आपने जो भी स्किल करनी है ना, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज उससे रिलेटेड भी आपको थोड़ा आना चाहिए। ब्लैडर रिपेयर, आप एफसीपीएस के कैंडिडेट्स हो, इवन एमसीपीएस के कैंडिडेट्स में भी ब्लैडर रिपेयर इज अ वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन। तो पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस का पूरा एक सर्जिकल डोमेन है, पूरा एक आपका मॉड्यूल होता है, ठीक है। तो उसमें पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस में ब्लैडर रिपेयर आ सकती है, चाहे वो गायनी के पेशेंट में आए, एंडोमेट्रियोसिस का सिनेरियो दिया जाता है कि उसके साथ आपने एडहेजन स्टीम बहुत ज्यादा तो ब्लैडर हो गई, रप्चर हो गई, ठीक है, या फिर किसी तरह से सिजेरियन, डिफिकल्ट सिजेरियन था उसके अंदर, या आपने कोई सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी की, उसमें यूरेटर को डैमेज हो गया तो बाद में, या वीवीएफ बन गया, उसमें फिस्टुला बन गया, तो हाउ विल यू मैनेज दैट। तो दीज आर ऑल पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन सिनेरियोस। बाकी आपके गायनी के अंदर पैप्समियर, तो आपको ऑब्वियसली जब आपसे मैनिकन पे एग्जामिनेशन अगर करवाया जाएगा तो पैप्समियर आप कैसे ले रहे हैं उससे रेलिवेंट स्टेन का स्टेशन अलग से भी आ सकता है, पैप्समियर आप हर गायनी के पेशेंट में आपसे करवाया भी जा सकता है, ठीक है। लिक्विड बेस साइटोलॉजी भी इसी तरह से पड़ी हो सकती है अलग से स्टेशन में भी। और अलग स्टेशन अब यूजुअली मुझे नहीं लगता कि अब अलग से स्टेशन आएगा, क्योंकि अब जब एग्जामिनेशन हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर TOSCI, then it will be obviously included in that Manican examination. बाकी आपकी obviously endometrial sampling के questions, चाहे वो actual पाइपाइल पड़ी हो, चाहे हिस्टेरोस्कोप पड़ी हो, सेरोस्कोपिक रिलेटेड उसके मुख्तलिफ सिनेरियोज आ सकते हैं, पिक्चर्स रखी हो सकती हैं सेरोस्कोप की, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या फाइंडिंग है सेरोस्कोप में, सेरोस्कोप के पार्ट्स, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, यूट्राइन परफोरेशन होगी स्टेरोस्कोप के बाद, हाउ विल यू डील विद दैट। तो ये सारे आपके क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन स्किल बेस्ड सिनेरियोज हैं, और आप ऑब्वियसली आपकी साथ साथ नॉलेज भी चेक हो रही है। टीएच वीएच के स्टेप्स आपको आने चाहिए, यूट्राइन इन्वर्जन का सिनेरियो आना चाहिए।
ओके, मैनिकन पे एग्जामिनेशन जैसे हमने बात की, टीओस्की का पार्ट हो सकता है। टीओस्की मींस लिंक स्टेशन, ठीक है, जैसे लॉन्ग केस आपका लिंक स्टेशन में 3 में आपको कर लिया, 3 स्टेशन में या 2 स्टेशन में कर लिया, सो एग्जामिनेशन उसमें भी आ सकता है या अलग से भी आ सकता है। अलग से ये बात आप याद रखें, एग्जामिनेशन के बगैर आप पास नहीं हो सकते। आप एफसीपीएस की डिग्री मुश्किल है कि वो आपको दें। अभी एक दो में इन 2 अटेम्प्ट्स में इन्होंने, क्योंकि जल्दी में कन्वर्ट हुआ था हमारा पैटर्न, तो इस वजह से सीपीएसपी ने भी 1-2 अटेम्प्ट्स के अंदर थोड़ा सा एग्जामिनेशन नहीं करवाई स्टूडेंट से। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि लॉन्ग टर्म में यही पैटर्न रहे। सो एग्जामिनेशन विल बी पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन assessment, where either it can be on mannequin or it can be on patient। ऑब्वियसली पेशेंट के ऊपर भी जनरल एग्जामिनेशन नहीं होती तो मैनिकन की होगी। सो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, कार्डिक एंड थायराइड की अलग से एग्जामिनेशन भी स्टेशन पर आ सकती है, या आपका सिनेरियो अगर कार्डिक पेशेंट का है तो आपको कार्डिक पेशेंट की एग्जामिनेशन, स्पेशली ऑस्कल्टेशन में पॉइंट्स कहाँ कहाँ रखने हैं। यू आर नॉट अ कार्डियोलॉजिस्ट कि आपको सारे मरमर्स पिक करने आते हो, मगर बेसिक नॉलेज के कौन से मरमर के लिए मैं स्टेप कहाँ रखूंगी, आप एटलीस्ट इतना ही अप्रिशिएट कर लें कि इस जगह पर एक एंडास्टोलिक मर्मर है, या यहाँ पर एक रिगर्गिटेशन का मर्मर है। इस तरह से आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पॉइंट्स मैंने स्टेप रखना है, बेल रखनी है या डायफ्राम रखना है, किस पोजीशन में लीन फॉरवर्ड में करा के रखना है, लेफ्ट लेटरल में कराना है पेशेंट को। तो ये सब हम कार्डियक एग्जामिनेशन में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। थायराइड की एग्जामिनेशन ऑब्वियसली आई साइंस आने चाहिए, थायराइड की पैल्पेशन आनी चाहिए आपको। खाली सिर्फ एक बस आप स्वॉलो करें और दैट्स इट, थायराइड रिमूव कर रहे हैं, नहीं स्वेलिंग है, इतना काफी नहीं है। अगर आपको स्वेलिंग लग रही है तो थायराइड की कंप्लीट एग्जामिनेशन, और ऑब्वियसली आप मेडिसिन की जिस तरह बेड साइड है, मैक्लोड्स बुक है, उससे आप ये थोड़े से पढ़ लें दोनों चीजें। उसके अलावा ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन आप सबको पता आती है, पेल्विक एग्जामिनेशन की हम बात कर चुके हैं। काउंसलिंग के सेशंस आपको कौन कौन से आ सकते हैं? प्री कंसेप्शन काउंसलिंग सारी मेडिकल सिनेरियोस की आ सकती है। नॉन मेडिकल डिसऑर्डर्स, एपिलेप्सी हो गया, ये पिछली दफा ओसी था, इस दफा पिछली दफा डायबिटीज थी पेशेंट को, या प्री एग्जिस्टिंग डायबिटिक पेशेंट है, तो ये तो आप सबको पता है कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में, या कोई पेशेंट का पहले डाउन सिंड्रोम का बेबी है, अब प्री कंसेप्शनली आपके पास आई है पेशेंट, कंजेनिटल एनोमलीज का, पिछली दफा हार्ट ड्रॉप्स था, और मतलब इम्यून हार्ट ड्रॉप्स था फॉर एग्जाम्पल, या टाइटर उसका हाई था, 1:60 कह लें था टाइटर, RH एंटीबॉडी टाइटर्स जो करवाए हुए थे। तो अब नाउ कैन शी गेट प्रेग्नेंट और नॉट, मतलब इस किस्म की सारी चीजें आपको प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में कार्डिक पेशेंट की सब आ सकती हैं। ब्रेकिंग बैड न्यूज, ये पूरा एक डोमेन है जिसके अंदर आपको हाउ टू ब्रेक बैड न्यूज टू द पेशेंट, हाउ टू हैव एन एम्पैथेटिक अप्रोच, इसके सेशंस आ सकते हैं। कैन बी IUD काउंसलिंग, कैन बी कैंसर, कैन बी एनीथिंग, ठीक है। उसके अलावा वीबैक काउंसलिंग तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, तो अब IIM के लेवल पर भी आना शुरू हुई है। तो आपने ERCS वर्सेस वीबैक, जो इलेक्टिव रिपीट सीरियन सेक्शन वर्सेस 2 लाख का परफॉर्मा होता है, जो RCOG का परफॉर्मा है, वो बहुत अच्छा से प्रिपेयर करना है इसकी काउंसलिंग में। उसके सारे पॉइंट्स बेसिकली आपने उर्दू में काउंसल करने और बात करनी है पेशेंट से। तो इसी तरह से इंडक्शन ऑफ लेबर का हर वो चीज जिसका RCOG की कॉन्सेंट है ना, उसका आप काउंसलिंग में समझ लें कॉन्सेंट्स आ सकती हैं प्रोसीजर्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट HRT की काउंसलिंग आ सकती है आपको, और एनी अदर सेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू काउंसलिंग। जनरली पेशेंट को ये वाले जो रिस्क मैनेजमेंट वाले सिनेरियोज होते हैं वो भी काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं, कि आपने पेशेंट की सर्जरी की, इनएडिक्वेट सर्जरी होगी, कैंसर था, पूरा नहीं निकाला, जब आप दोबारा रिपीट MRI कराया तो पता चला कि कुछ डिबल्किंग प्रॉपर नहीं हुई। सो रिस्क मैनेजमेंट, इस किस्म की चीजें, क्लिनिकल गवर्नेंस के स्टेशंस की, पेशेंट इज नाउ एजिटेटेड एंड शी इज ब्लेमिंग यू फॉर समथिंग, और सम ऑफ हर प्रॉब्लम्स। सो ये सब आपने हाउ टू काउंसल, हाउ टू सिचुएशन हैंडलिंग भी काउंसलिंग का पार्ट है, ठीक है। ओके, अब आपके जो शॉर्ट केसेस हैं बेसिकली उनके डोमेन्स क्या क्या हैं, किस किस डोमेन्स में, किस किस मॉड्यूल में, सॉरी, आपको चेक किया जाता है कौन कौन से मॉड्यूल्स आपने करने हैं। मुख्तलिफ शॉर्ट केसेस की बुक्स मौजूद है, आई बी टेलिंग यू दोस इन अ व्हाइल। So you'll be having teaching sessions. Teaching sessions can be anything. Last time POPQ पे teaching आई थी कि POPQ एक medical student है, या सॉरी आपका junior resident है जिसको आपने teaching पढ़ानी है POPQ। और important बात ये होती है कि teaching sessions में आप हमेशा drawings के साथ पढ़ाते हैं, क्योंकि मटेरियल कभी आपको दिया होता है, कभी आपको कार्ड्स वगैरह दिए होते हैं कि इनकी मदद से आप पढ़ाएं, या कोई डमी दी होती है, फॉर एग्जांपल फीटल स्कल के पैरामीटर्स आपने पढ़ाने हैं, मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ाना है आपने, ठीक है। सो वो सब चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, और आपको पेपर पेंसिल भी मौजूद होता है वहां पर। तो आप सोचें कि कहाँ पे डायग्राम्स में बना सकती हूँ, ये पॉइंट लड़कियां मिस करती हैं कि डायग्राम्स नहीं बनाती। मैक्सिमम डायग्राम्स, टेबल्स, चीजें इस तरह से पढ़ाएं
और उसका एक मेथड होता है कि पढ़ाने के बाद फिर आप उससे पूछते भी हैं, पहले प्रायर नॉलेज पूछते हैं, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। टीचिंग मेथड्स 10 स्टेप्स होते हैं जिसमें आपने टीच करना होता है, 10 स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव लर्निंग, ठीक है, हम इस पे डिस्कशन करेंगे। कोर सर्जिकल स्किल्स, आपको जिस हमने पीछे बात की कि आपकी यूजुअली ये आमतौर पर कोई ना कोई बीएच के स्टेप्स पूछ लिए, टीएच के स्टेप्स करवा लिए, सिजेरियन स्टेक्टमी करवा ली। सर्जिकल स्किल्स आपसे मुख्तलिफ 3rd and 4th डिग्री प्रीनियल टीयर की रिपेयर, ये सब आ सकती है, ठीक है। पोस्ट ऑप केयर में पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस में की हो गई है पेशेंट को, वीवीएफ हो गया, कैसे इसको डील करेंगे। एंटीपार्टम केयर में आपको पता है सारी एंटीपार्टम केयर की डिटेल, सारे इसमें आपके मुख्तलिफ सिनेरियोज, RH कंपेटिबिलिटी, लाइकर वॉल्यूम, एबरेंट लाइकर वॉल्यूम, ये सब इसमें आता है, ठीक है। बुकिंग में कौन सी विजिट्स करेंगे, कौन सी पेशेंट हाई रिस्क है, कौन सी लो रिस्क है, इसके सिनेरियोज। इंटरनल मेडिसिन के मैनेजमेंट ऑफ लेबर, मैनेजमेंट ऑफ डिलीवरी, लेबर केयर गाइड जरूर करनी है, ये तो बहुत अब इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, तो हम सब इसको फॉलो कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल्स में। सो लेबर केयर गाइड के सिनेरियोज आपको आज से हैं, बहुत अच्छी आनी चाहिए, आपको हम करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, अब नॉर्मल लेबर या ऑब्वियसली लेबर केयर गाइड के साथ ही होती है। पोस्टमार्टम की प्रॉब्लम्स, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, सब फर्टिलिटी रिलेटेड इशूज, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इशूज, कॉन्ट्रासेप्शन इसमें आती है। अर्ली प्रेगनेंसी केयर के अंदर क्या क्या कुछ आता है, वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, देन मिसकैरेजेस, पोलर, ये सब आएगा। ऑन्कोलॉजी के सेशंस एंड यूरोगाइनी, यूरोगाइनी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एफसीपीएस का, आपको उसके बगैर एफसीपीएस बहुत मुश्किल है कि कोई ना कोई सिनेरियोस करना है। अब यूरोगाइनी के अंदर ही बेसिकली ये आपका पॉप-क्यू वगैरह भी आ जाता है। सो ये मतलब इकट्ठा एक ही डोमेन होता है जिसमें पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम्स भी ना इसके अंदर ही आ जाते हैं। सो यूवी प्रोलैप्स एंड यूरोगाइनी, इन दोनों में से कोई एक चीज जरूर आती है आपके डोमेन, आपके असेसमेंट में। ओके, अब लेट्स डिस्कस कि आपको कितने स्टेशन होंगे और स्टेशन की मार्किंग कैसे की जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपने क्लिनिकल बेस लड़कियां समझती हैं कि मैं बहुत ज्यादा बोल कर आई, मैंने जो कुछ मैं बोल सकती थी, जो मुझे इन्फॉर्मेशन थी, जो नॉलेज थी, वो मैंने बहुत ज्यादा बताया, लेकिन स्टिल क्या वजह हुई कि मैं पास नहीं हुई। अगर आपको 5 डोमेन्स पता है जिसमें आपको असेस किया जाता है, देन यू विल बी इट विल बी इजियर फॉर यू टू गेट थ्रू, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं बताऊं, आपका एक सर्किट होता है, आप लोग 2 या 3 बैचेस में डिवाइडेड होते हो एक दिन में, और आपका एक सर्किट होता है जिसमें 12 या 14 स्टेशन होते हैं। ईच स्टेशन आपका 10 मार्क्स का होता है, 10 मिनट्स का होता है, एग्जैक्टली एक्चुअली 12 मिनट्स होते हैं। 2 मिनट्स आपको सिचुएशन को रीड करने के लिए दिए जाते हैं, असेसमेंट के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। हो सकता है पेशेंट की कोई फाइल पड़ी हो या उसकी कोई रिपोर्ट पड़ी हो वहां पर, या सिनेरियो को पढ़ने के लिए उसको दिमाग में एक थोड़ा सा बेसलाइन खाका सा बनाने के लिए आपको टाइम दिया जाता है। तो 2 मिनट उस चीज के हो गए, बाकी 10 मिनट्स में बेसिकली आपने टास्क को सॉल्व करना होता है। सो आपको जो टास्क दी जाती है उसमें 5 डोमेन्स में आपको असेस किया जाता है, और जरूरी नहीं है कि पांचों की पांचों डोमेन एक सेशन में, एक स्टेशन में असेस हो रही हो। तो जिस जिस स्टेशन में कोई एक आधी डोमेन नहीं अगर असेस हो रही, तो उसको खींच के जबरदस्ती पूरा नहीं करना, एक ये बात जहन में रखनी है, ठीक है। अदरवाइज यूजुअली जो आपको असेसमेंट की जाती है उसमें 5 डोमेन्स में नंबर 1 डोमेन इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग। व्हाट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग? बेसिकली इट इन्वॉल्व्स all the information which you need to solve that scenario, which you need to get to a differential diagnosis, and obviously which you need in order to choose a treatment criteria. ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली पेशेंट की हिस्ट्री रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको मैनेजमेंट में किसी ना किसी ट्रीटमेंट ओरिएंटेड मैनेजमेंट में आपको, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है, आपने अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं ली कि एक साइड की ट्यूब पेशेंट की ऑलरेडी, हो सकता है पहले भी कोई टॉपिक हुई हो, पहले भी एक साइड की ट्यूब ठीक नहीं है, या सिंगल साइड की ट्यूब पेटेंट है पेशेंट की, और आपकी मैनेजमेंट इसमें डिपेंड करती है कि आप जब सर्जरी करेंगे नहीं करेंगे, पेशेंट क्लिनिकली स्टेबल है तो। सो इन शॉर्ट ये है कि आपको वो सारी इंफॉर्मेशन, इट डज नॉट ओनली इन्वॉल्व हिस्ट्री, ठीक है, इसके अंदर आपको फोकस हिस्ट्री लेनी है। फोकस्ड, आई एम वेरी मच emphasizing on the point कि फोकस हिस्ट्री के टेम्पलेट्स होते हैं छोटे, वो आपने पूछने हैं शुरू से लेकर आखिर तक। हस्बैंड क्या करता है, हस्बैंड की तालीम कितनी है, नहीं जरूरी यहाँ पर ये पूछना, आपके पास टाइम नहीं होगा इतना, ठीक है। अगर तो मतलब डाइट रिलेटेड लड़कियां हर चीज हर वक्त पूछती हैं कि आप जी कच्चे चावल मिट्टी तो नहीं खाती, अगर अनीमिया का केस है तो पूछें, पेशेंट अनीमिक लग रही है तो पूछें, अदरवाइज ना पूछें। हर पेशेंट की सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपकी पेशेंट अनीमिक है तो यस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर अदरवाइज
पेशेंट का आपकी कोई महंगा ट्रीटमेंट सोच रहे हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट सोच रहे हैं, तब भी आप पूछ लें, ड्रग एलर्जीज पूछ लें, बस दैट्स इट। बहुत हर चीज की डिटेल नहीं पूछनी है। जो फोकस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है वो फोकस हिस्ट्री, उसका टेम्पलेट, बस वो 7-8 पॉइंट्स, इधर उधर नहीं जाना, ठीक है। देन उसमें आप पेशेंट का जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में हिस्ट्री आपने ले ली, आपने उसका प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड मांगना है। अगर हर पेशेंट में जरूरी नहीं है, लेकिन इट कैन इंक्लूड, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रीवियस स्कार है पेशेंट, और अभी आपके पास 36-37 या अभी की प्रेगनेंसी, लेकिन पिछली प्रेगनेंसी में आपको पता चलता है प्रीवियस स्कार है, आपको पता है कि अभी की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट भले उसकी ओसी की हो, ठीक है, वो ऑब्स्टेट्रिक कोलिसिस की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में की डिटेल में फोकस हिस्ट्री में प्रीवियस स्कार की इंफॉर्मेशन नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको पता है कि एग्जामिनर विल आस्क यू अबाउट मैनेजमेंट की डिस्कशन हो सकती है स्टेशन पे, तो उसमें आपने मोड ऑफ डिलीवरी पे डिस्कशन करनी होगी ना, so you have to have a knowledge, little bit knowledge about previous car as well. So that is important कि आपने previous medical record में कि कहाँ पे हुआ था ऑपरेशन, मिडलाइन था, लोअर सेगमेंट था, प्री टर्म सेक्शन तो नहीं हुआ हुआ पेशेंट का, ठीक है, हिस्ट्रोटमी तो नहीं हुई हुई पेशेंट की, क्या रीजन थी, रिकरेंट कॉज तो नहीं है, इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल शॉर्ट तो नहीं है, पेशेंट को सीबीटी की हिस्ट्री तो नहीं थी। सो वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो आपको केस की डीडी या मैनेजमेंट तक पहुंचने के लिए चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड में। यू कैन आस्क अबाउट फ्रॉम द एग्जामिनर, फ्रॉम द पेशेंट, यू कैन आस्क मुझे प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए, यू कैन इवन आस्क अबाउट हिस्ट्री, अबाउट ड्रग शीट, मेडिकेशन शीट में मैं देखना चाहती हूँ इस पेशेंट की, अगर आपको पेशेंट हिस्ट्री में नहीं बता रही कि वो हाइपरटेंसिव लेवल लेती है, सो आप एग्जामिनर से मांग सकते हो कि आई वुड लाइक टू हैव अ ड्रग शीट, मेडिकेशन शीट, बिकॉज आप बताओ भी इस तरह, आपका इंप्रेशन ना एग्जामिनर को ऐसे नहीं जाना चाहिए कि आप चिटिंग करना चाह रहे हो, आपका इंप्रेशन ये जाना चाहिए कि मुझे लग रहा है कि पेशेंट लेबेटालॉल शायद ले रही है, बट लोपरिन भी येलो ही होती है, सो आई वांट टू डिफरेंशिएट। अगर आप इस तरह करके मांगोगे ना, तो एग्जामिनर माइंड नहीं करेगा आपको कोई भी चीज शेयर करने में। लड़कियां मुझसे आगे बहुत डिस्कस करती हैं कि एग्जामिनर ने हमें डांट दिया कि सब कुछ हमने ही तुम्हें देना है, तो तुमने क्या करना है। वो तब होता है कि जब आपको बिल्कुल क्लूलेस हैं और आप एग्जामिनर से चीजें मांगे जा रहे हैं। मांगने का स्टाइल होता है, अब एग्जामिनर से द वे यू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, इट शोज कि आपकी ग्रिप कितनी है। छोटी छोटी लाइनें होती हैं जो आपने सही ना एग्जाम में बोलनी होती हैं। आप एग्जामिनर को ये नहीं कह सकते कि मुझे इसका पिछला सारी सर्जिकल रिकॉर्ड भी देते हैं, ये भी देते हैं, ये भी देते हैं, सर्जिकल नोट्स भी दे दें, सारा कुछ दे दें। आप कहते हैं कि मेरे ख्याल में इसको ये है, मैं कंफर्मेशन के लिए चाह रही हूँ, कैन आई हैव दिस। तो इससे आप अपना 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 एग्जामिनर को ना क्लू जरूर दिखाते हैं कि मैं किस लाइंस पे सोच रही हूँ और मैं क्या दिखना चाह रही हूँ। अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन जो आप थिंकिंग प्रोसेस नहीं शो करोगे एग्जामिनर को, जस्ट एक चीज मांग लोगे, तो उनको लगेगा कि ये तो कुछ थिंकिंग डॉक्टर नहीं है, क्लिनिकल एवेल्युएशन नहीं कर रही है, एक नतीजे तक नहीं पहुंची, डीडी तक नहीं पहुंची, और ये मुझसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन मांग रही है। तो थोड़ा सा ना एक स्टाइल पूछने का डिफरेंस से आपको काफी हद तक चीजों का तब अंदाजा हो जाता है कि आपने क्या मांगना है क्या नहीं मांगना। एक ही लड़की आके कहती है कि मैंने मांगा मुझे दे दिया, और एक लड़की आके कहती है मैंने मेडिकेशन शीट मांगी, या मैंने पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस के साथ आई थी, मैंने सर्जिकल नोट्स मांगे तो एग्जामिनर ने मुझे डांट दिया। वजह क्या होती है? वजह दोनों का डिफरेंस होता है कि आपने एक ने एग्जामिनर को सारा अपना केस सिनेरियो थिंकिंग प्रोसेस शो किया होता है कि मैं क्यों करना चाह रही हूँ, और दूसरी ने नहीं शो किया होता, दूसरी ने जस्ट चीजें मांगी होती है, क्लूलेस होती है। सो फिर एग्जामिनर ऑब्वियसली दोनों में डिफरेंस होता है फिर, ठीक है। ओके, व्हाट इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अदर चीजों में आप क्या मांग सकते हैं? मुझे रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस मांगनी है, प्लीज बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस हर पेशेंट में नहीं मांगनी। अगर आपके पेशेंट में अनीमिया है, आपको लगता है सीबीसी की जरूरत है, डेफिनेटली जरूरत है, तो फिर आप पूछें। अदरवाइज आपका केस, जब आप सर्जरी करने जाएंगे ना, तब आप कहते हैं कि मैं बेसलाइन वर्क पूरा करा लूंगी, लेकिन अभी जब केस की डिस्कशन हो रही है आपसे स्टार्ट में कि आप इसको सॉल्व करने के लिए, डीडी को फाइनली प्रोविजनल डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए आपको कौन सी इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो प्लीज रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन। पहला लफ्ज मुंह से बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन का नहीं निकलना चाहिए। उसको आपने पूछना ही है तो डाउन द लिस्ट पूछ लें बाद में कि हाँ जी मैं प्री ऑपरेटिव जब मैं वर्कअप कराऊंगी तो मैं देख लूंगी इसकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है कि नहीं है। इस वक्त अगर वो रेलिवेंट नहीं है तो डू नॉट आस्क, इधर उधर की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। टाइम भी शॉर्ट होता है और आप फोकस्ड अपने आप को रखते हैं, तो एग्जामिनर भी फोकस्ड रहता है। तो आप इधर उधर जाते हैं तो आप लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस, सीधा मेडिकेशन शीट, चार्ट्स, बीएसएल। आपका पेशेंट अभी शुगर वाला है, आप डायबिटीज के साथ, आप चाहते हैं कि 3 दिन का रिकॉर्ड मुझे दिखाए, पेशेंट नहीं बता रहा आपको सही से, आपको नहीं पता, सो आप मांग सकते हैं, वुड लाइक टू हैव अ लुक ऑन चार्ट, बिकॉज मैं देखना चाहती हूँ कि शुगर लेवल्स कंट्रोल्ड हैं कि नहीं, और कितने ज्यादा अनकंट्रोल्ड हैं, प्री मील्स अनकंट्रोल्ड हैं, पोस्ट मील्स अनकंट्रोल्ड हैं। मैं इसलिए देखना चाहती हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ कि मैं इसको एनपीएच दूं या मैं इसको रेगुलर की डोज बढ़ाऊं। जब मैं इस तरह बात करूंगी ना, तो एग्जामिनर मुझे मेडिकेशन शीट या तो दे देगी या मुझे बता देगी। अगर मैं सिंपल ही कहूंगी मुझे मैडम इसकी डायबिटीज की शीट चाहिए,
मुझे उसकी PSL चार्टिंग की शीट चाहिए। एग्जामिनर ने कही क्यों, आपने नहीं मरीज से पूछा, आपने हिस्ट्री में पूछा नहीं, वो फिर आपको इधर उधर तंग करेंगे। So the way you ask for investigations or any information is important. We'll be focusing on that more in our detailed cases जब हम करेंगे। Okay. Next domain आपका क्या होता है? Communication with patient and family and applied clinical knowledge and communication with colleagues and patient safety. ये चारों domains में आप और check हो रहे हो। Communication with patient and family obviously role player होता है। अगर वो बैठा हुआ है तो उसके साथ आप किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की थी, एम्पैथेटिक अप्रोच है कि नहीं है, ठीक है। आप पेशेंट की के लेवल पर आकर उससे सिंपल उसकी अल्फाज से बात कर रहे हैं, मेडिकल जैर्गन तो नहीं यूज कर रहे, आप पेशेंट को बहुत ज्यादा ओवर इंफॉर्मेशन से बम्बार्ड तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल उसके लेवल पे। ऑब्वियसली इसमें एजुकेशन का पूछना जरूरी है कि पेशेंट कितनी एजुकेटेड है, हाउ यू आर डीलिंग विद द सिचुएशन। अगेन इसमें अगर रिस्क मैनेजमेंट का केस है या क्लिनिकल गवर्नेंस का केस है तो पेशेंट एजिटेटेड है या पेशेंट को बाहर फॉर एग्जांपल इंतजार करना पड़ा है, आपका क्लिनिक देर से शुरू हुआ है, कुछ भी इस किस्म की सिनेरियो आपको दे सकते हैं। सो हाउ यू हैंडल दैट सिचुएशन। इसी तरह कम्युनिकेशन विद कुलीग, अलग से कुलीग नहीं होता, एग्जामिनर ही आपका कुलीग होता है, वो भी चेक किया जाता है कि आपने एग्जामिनर से बात कैसे की, केस पे डिस्कशन कैसे की। और अगर सिंपल रोल प्लेयर वाला सिनेरियो है जिसमें एग्जामिनर साइलेंट है, वो कुछ पूछ नहीं रहा आपसे, बस एक साइलेंटली बैठी है एग्जामिनर, सो उसमें कम्युनिकेशन विद कुलीग कहाँ पे आपकी चेक होती है कि जब आप डिस्कशन केस के अंदर आप MDT को इन्वॉल्व करती हैं, ठीक है। जो आप पेशेंट से कहती हैं कि हमारी पूरी टीम बैठेगी और आपका केस हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फला 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 डॉक्टर्स को बुलाएंगे, ट्यूमर बोर्ड बैठेगा और आपका केस डिस्कस करेगा, तो वो आपके कम्युनिकेशन विद कुलीग के मार्क्स आपको वहां मिल जाते हैं। सो MDT के मुतालिक बात करना, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच के मुतालिक बात करना बहुत जरूरी है अगर आपका रोल प्लेयर का सेशन है। तो अदरवाइज अगर आपका एग्जामिनर के साथ डिस्कशन है तो ऑब्वियसली जब आप एग्जामिनर से बात कर रहे हो, द वे यू इन्वॉल्व योर कोलीग्स, और मैं डिसीजन से पहले आप बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल सर्जरी होने जा रही है तो मैं किन किन को इन्वॉल्व करूंगी, और तो वो आपकी बेसिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं कोलीग को कि नहीं, सर्जिकल टीम को इन्वॉल्व कर रही हूँ, यूरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। और एग्जामिनर से आप कैसे केस बेस्ड डिस्कशन कर रहे हैं, एग्जामिनर ही बाजूकात आपका कोलीग भी बन जाता है, ठीक। अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज, ये तो बेसिक चीज है, आप सबको पता है। क्लिनिकल नॉलेज आपकी बैकग्राउंड नहीं होगी, चीजें आप गलत इन्फॉर्मेशन पेशेंट को दे रहे हो या एग्जामिनर को दे रहे हो तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, व्हाट इज पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी का मतलब ये है कि आप पेशेंट को जो भी मैनेजमेंट बता रहे हो, जो भी इन्वेस्टिगेशन बता रहे हो, वो बिल्कुल एक आउट ऑफ वर्ल्ड तो नहीं है, मतलब इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है जो कि पेशेंट की केस सॉल्विंग में इतनी हेल्पफुल ना हो और पेशेंट के लिए रेलिवेंट ना हो, ठीक है, या कॉस्ट इफेक्टिव ना हो उस पेशेंट के लिए। आप बहुत ऐसी, फॉर एग्जांपल आप MRI फोकस्ड अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे हो और आपको सिंपल पेशेंट बेचारा ऐसा है जिसको कि हिस्टेक्टमी के लिए भी तैयार है, हिस्टेक्टमी भी हो सकती है उसकी, और लेकिन आपको एक फैंसी चीजों के नाम पता है तो आप बहुत सारी फैंसी चीजें बता रहे हैं उसको। देन अगेन इसमें इस किस्म के सिनेरियोज आ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये रिलेटेड है, अगर आपने पेशेंट ने आपने बात नहीं की उसको, उसके ट्रीटमेंट में MDT की बात नहीं, ये ट्यूमर बोर्ड में आप नहीं, आपने पेशेंट का केस डिस्कस नहीं किया, आपने अपने ओन पर ही सब कुछ कर लिया पेशेंट का, ठीक है। आपका पेशेंट कैंसर का है, आपको पता लग गया एडवांस स्टेज कैंसर है, आपने खुद ही से फैसला कर लिया कि इसको मैंने रेडियोथेरेपी देनी है या मैंने इसको वट एवर डिबल्किंग सर्जरी करनी है, ठीक है। आपने किसी और को इन्वॉल्व नहीं किया तो आप पेशेंट के लिए सेफ नहीं है। आपने ऐसी मैनेजमेंट कर दी जिसमें आपने एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व नहीं किया, सो दिस इज नॉट पेशेंट सेफ्टी। इसी तरह आप पेरिफ्री में बैठे हैं, आपका सिनेरियो इस तरह का है, पेरिफ्री में बैठे हैं, आपने POS1 कार्ड है, वहां पे आप कह रहे हैं कि चीता बन के कि मैं तो ट्रायल दे दूंगी इसको क्योंकि मैं बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर हूँ। आप बहुत कॉम्पिटेंट होगी, आपके पास ना OT है, ना एनेस्थेटिस्ट है, ना ब्लड बैंक मौजूद है, आप POS1 को स्कार को ट्रायल नहीं देंगी इन पेरिफ्री जहाँ पे आपके पास फैसिलिटीज मौजूद नहीं। दैट इज नॉट पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ नहीं है आपका अगर आप कहती हो कि क्योंकि हमने टर्शरी केयर में बहुत दफा POS1 को ट्रायल दिए हुए हैं, तो हम टर्शरी केयर में हॉस्पिटल में हैं डॉक्टर्स, तो हमारे मुंह से निकल आता है कि हम इसमें तो हम तो आराम से इसको ट्रायल दे सकते हैं। लेकिन यही पेशेंट अगर पेरिफ्री की है या इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल कम है, वट एवर जिसके पॉइंट्स हैं, ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें आपने एक बड़ा वो नहीं हो बड़े बन के मुझे तो पता है मेरी तो ग्रिप है इस चीज पर, लेकिन आपने पेशेंट का नहीं सोचा, पेशेंट सेफ नहीं। तो पेशेंट सेफ्टी के पॉइंट्स होते हैं हर सिनेरियो में, जब हम डिटेल करेंगे तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी असेस्ड। अब अगेन ये बात है कि पांचों डोमेन एक पेशेंट में चेक नहीं हो रहे होते, किसी पेशेंट में हो सकता है कम्युनिकेशन विद पेशेंट एंड फैमिली वाली चीज ना हो, किसी में हो सकता है कम्युनिकेशन विद कोलीग्स वाली बात ना हो, ठीक है। अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज तो यूजुअली सब में ही होती है। सो
जो 3-4 डोमेन्स होते हैं उन्हीं में फिर आपकी मार्क्स की परसेंटेज की डिवीजन हो जाती है। लेकिन एज अ जनरल आपको मार्क्स नहीं देता एग्जामिनर, आपको ना 0, 1 और 2 मार्क्स मिलते हैं। 0 स्टैंड्स फॉर फेल, 1 स्टैंड्स फॉर बॉर्डर लाइन एंड 2 स्टैंड्स फॉर पास। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको हर डोमेन में, फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो आता है जिसमें 5 डोमेन्स आपकी चेक हो रही हैं, तो एग्जामिनर के पास जो जो आंसर शीट की होती है उसके अंदर 5 डोमेन्स के आगे 0, 1, 2 लिखा होता है। तो वो आपके रोल नंबर के आगे जो आपकी वाली शीट आएगी उसमें हर डोमेन में, फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन गैदरिंग की डोमेन में वो लिखेगा 2, इसका मतलब है लड़की ने इंफॉर्मेशन गैदरिंग सही की, पास है ये इसमें। फिर कम्युनिकेशन विद पेशेंट एंड कोलीग में लिखेगा 1, बॉर्डर लाइन थी। तो हर डोमेन में अलग अलग वो आपको 0, 1, 2 मार्क्स देगा। आई होप दैट इज अंडरस्टैंडेबल। मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ। Okay, this is not an actual CPSP page, ठीक है, this is just to show कि किस तरह से मार्किंग होती है। ये बिल्कुल भी CPSP में इस तरह का पेज नहीं आता, तो डू नॉट कॉपी दैट। बस आपको सिर्फ समझाना चाह रही हूँ कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन गैदरिंग में यहाँ लिखा हुआ है 0, 1, 2, ठीक है, तो 0 मीन्स फेल, 1 मीन्स बॉर्डर लाइन एंड 2 मीन्स पास। तो फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर 2 मेरे पास आया था, तो उसको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में हमने 1 पॉइंट दिया, तो बॉर्डर लाइन थी, कुछ चीजें बहुत अच्छी थी, कुछ चीजें नहीं पूछी, मिस की। ठीक है, तो इस तरह से हर डोमेन में आपको 0, 1, 2 मार्क्स मिलते हैं और इन द एंड आपको 10 में से मार्क्स मिल जाते हैं, वो आपकी ओवरऑल परसेंटाइल होती है। आपको एक सिनेरियो को पास करने में मोर देन 60% चाहिए परसेंटाइल, जो आपको हर स्टेशन की अलग अलग चाहिए ना, वो 60% चाहिए। हैविंग सेड दैट, एक स्टेशन में अगर आपकी 60% नहीं आती और बाकी स्टेशन में आ जाती है तो आप फेल नहीं होते। ओवरऑल परसेंटेज सारे स्टेशन की मिला के आपकी मोर देन 60% होनी चाहिए। तो एक आधा स्टेशन अगर आपका फेल हो जाता है तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी स्टेशन अगर आप किसी में आपकी 80% आ गए हैं, सो दैट इज गुड कि आप उसमें आपका दूसरा जो स्टेशन अच्छा नहीं हुआ वो कवर हो जाता है। ठीक है, सो लेट्स टॉक। ये तो एग्जाम ओरिएंटेशन था, अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। बहुत ज्यादा एप्रीहेंशन स्टार्ट में होती है, बल्कि बाद लोगों को बिल्कुल नहीं होती है, बाद बहुत होती है। सो इट्स हाई टाइम दैट यू शुड स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर मार्च अटेम्प्ट। 3 महीने काफी हैं आपके लिए, अगर आप दिल लगा के सही तरीके से पढ़ें। रैंडमली पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता, अपने आप को फोकस करके पढ़ना। यू हैव टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। शुरू कहाँ से करना है, व्हाट इज द की टू सक्सेस, व्हेन यू हैव टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना एनवायरनमेंट पढ़ाई वाला बनाना है। और कैसे बनाना है, आपके घर में बच्चे हैं, किड्स हैं, यू शुड गेट हेल्प। आप सुपर वुमन नहीं है कि आप जो है वो पढ़ाई भी कर लें। आप यकीनन मोस्ट ऑफ यू जॉब भी कर रहे होंगे, आप लोग जॉब भी कर लें, बच्चों को भी देख लें, घर को भी संभाल लें और साथ साथ पढ़ाई भी कर लें। ये एग्जाम आपकी 100% फोकस मांगता है। और ऑब्वियसली 3-4 महीने के लिए घर फैमिली को टोटली इग्नोर करना पॉसिबल नहीं होता। तो आपको इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि आप हाउस होल्ड हेल्प में, चाहे वो किसी आप मेड की फॉर्म में हो या आपके घर में आपकी मदर है, मदर इन लॉ है, ये अब आपने सोचना है। ठीक है, लेकिन आपको हेल्प चाहिए, आपको घर को और बच्चों को देखने के लिए हेल्प चाहिए। एक दो पेन एक बंदा तसल्ली से देख रहा होगा तो आपको पढ़ाई पे फोकस कर सकेंगी। याद रखें, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है ना, तो अनफॉर्चुनेटली बहुत दफा होता है कि चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एग्जाम इस तरह का होता है कि डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप एग्जाम में थ्रू नहीं हो पाते। सो आपको 100% फोकस चाहिए, काफी 100% ना सही तो काफी हद तक 80% फोकस चाहिए। ठीक है, और बीच में अपना थोड़ा सा 1-2 घंटे दिन के कुछ टाइम अपने लिए, अपने बच्चों फैमिली के लिए भी रखिए। ऐसा नहीं है कि आप 24 आवर्स अभी से पढ़ना शुरू कर दें या बस सोएं और खाना खाएं और दैट्स इट। तो आप अपनी टाइम डिवीजन करें, इंपॉर्टेंट बात यह है। ठीक है, देन यू शुड गेट अ स्टडी पार्टनर। आप अकेले नहीं कर सकते एग्जाम, ये अभी से लिख लें। अगर जो लड़की कहती है मैं कर लूंगी, चाहे सारा दिन भी पढ़ती रहे, वो नहीं कर सकती, बिकॉज ये प्रैक्टिस एग्जाम है। इसमें कोर्सेज जितने भी हैं, चाहे चाहे ये वाला मेरा कोर्स है, मेड एग्जाम का कोर्स है, कहीं किसी भी लेवल का आप कोर्स ले लें, इंटरनेशनल कोर्सेज भी ले लें, जब तक आप खुद उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नो कोर्स कैन गेट यू थ्रू। कोर्सेज कैन ओनली help you out. Courses can only give you a direction to study, how to study, how to have a focus study, कि मिनिमम एफर्ट करके मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हैं, ये चीज हम बता सकते हैं, लेकिन एफर्ट आपकी अपनी है। सो उसके में आपने एक स्टडी पार्टनर लेना है, साथ एक कोई फ्रेंड लेनी है। जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली प्रेजेंट हो, आप एक दूसरे को ऑनलाइन व्हाट्सएप पे कॉल करके कर सकते हैं, क्योंकि ये हर चीज तो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं है ना। उसमें आपने क्या करना है, स्टडी पार्टनर के साथ जस्ट एक किताबें नहीं पढ़नी, आपने केसेस की प्रैक्टिस करनी है। जो आप डेली वार्ड में केसेस देखती हैं, उन्हीं केसेस को पकड़ें और उनके मुख्तलिफ सिनेरियोज खुद ही बनाएं।
एनीमिया है, 8 HP आ गई तो क्या करनी है, अच्छा यही थर्ड ट्राइमेस्टर में पेशेंट आ गई है तो मैंने क्या करना है, ठीक है, अब यही पेशेंट का सिजेरियन होने लगा है तो मैंने क्या करना है। खुद ही मुख्तलिफ एक केस से बहुत सारे 5-6 सिनेरियोज बन जाते हैं। सो उन सिनेरियोज के साथ अपनी एक लड़की दूसरी फ्रेंड को अपनी को सिनेरियोज दे, अब वो सिनेरियोज के हिसाब से उसको बोलती जाए। इसी तरह आप तो आपस में एक दूसरे के साथ ना, ये पेशेंट आ गया, हाउ विल यू टेक इन, मैं आई विल बी योर पेशेंट, मुझसे हिस्ट्री लो। तो इस तरह एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करें, अदरवाइज अकेले आप नहीं कर सकेंगे। स्टिल अगर आपके पास कोई नहीं है स्टार्ट में, तो आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, लेकिन बोलना है, खाली रट्टा घर रीड करने से नहीं एग्जाम पास होगा। जब तक आप बोलने की प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट करते हुए कि मैंने 5 मिनट में हिस्ट्री कैसे लेनी है, मैंने 5 मिनट में एग्जामिनेशन के पॉइंट्स कैसे पूछने हैं, ठीक है, काउंसलिंग का स्टेशन आ गया, वीपैक वर्सेस टूलैक आ गया, अपना टाइमर लगा के बोले कि मैं मरीज को ये बताऊंगी। तो ये चीजें आप बेशक किसी पार्टनर के साथ नहीं भी करिए, आप मिरर के सामने कर सकती हैं, ठीक है। कुछ सिनेरियो बेस्ड चीजें हैं वो आप स्टडी पार्टनर के साथ कर सकती हैं। अदरवाइज ये है कि आप कुछ चीजें जैसे काउंसलिंग के सेशंस हो गए, आपने उर्दू में काउंसलिंग के पॉइंट्स लिखने हैं और वो आपने याद करने हैं, तो आप अकेले मिरर के आगे भी कर सकते हो। देन यू हैव टू डिसिप्लिन योरसेल्फ, विदाउट डिसिप्लिन यू कैन नॉट get through. You have to make a schedule, you have to make follow that schedule religiously. इस तरह का कोई एलियन किस्म का शेड्यूल नहीं बनाना जिसको आप फॉलो ही ना कर सकें। मेड एग्जाम के साथ आपको ये फायदा होगा कि आपको मैं भी शेड्यूल बताती हूँ, अगर आप उसके साथ चलोगे काफी हेल्पफुल इन द सेंस के प्रैक्टिकल शेड्यूल है, इस किस्म का नहीं है कि कोई एक दिन में मल्टीपल बहुत सारी टास्क मिल जाए कि जो कि आप, आई अंडरस्टैंड कि आप इस वक्त कॉल जॉब्स भी कर रही होंगी तो आप नहीं कर सकोगे, मैं घर वाली बहुत सारी टास्क नहीं देती हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल टास्क होती हैं, प्रैक्टिकली ओरिएंटेड होता है कि आपको हफ्ते के अंदर ये वाला चीज पूरी करनी है, और आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको मतलब एक फॉलो कर सकते हैं। इस तरह का कोई इनप्रैक्टिकल किस्म का नहीं होता कि जिसको आप फॉलो ना कर सकें। तो अगर आपको शेड्यूल मिल जाता है रिलीजियसली, उसको साथ ही साथ पढ़ें, साथ ही साथ फॉलो करें तो कर सकते हैं। एंड के लिए मत छोड़ें, एंड पे बहुत कुछ पाइल अप हो जाता है, फिर नहीं होता। सो यू हैव टू वर्क हार्ड, स्टडी स्मार्टली। स्टडी स्मार्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंडमली एक चैप्टर उठा के पूरी ईवीएम पढ़ना शुरू कर दें, पूरी शॉर्ट्स पढ़ना शुरू कर दें, इस तरह से नहीं होता पास। स्मार्ट स्टडी करनी है, थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा फोकस पढ़ना है, रेलिवेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं। और ऑब्वियसली इस हाउ टू स्टडी स्मार्टली, इसमें आपका कोर्स जो है ना मेंटोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि आपको बताता है कि कहाँ कहाँ से कैसी कैसी चीजें पढ़नी है, इस गाइडलाइन में कहाँ से कौन सा बॉक्स पढ़ना है, किसका एलोग्रेथम पढ़ना है, कौन सी पूरी गाइडलाइन पढ़नी है। थोड़ा सा जरा कोर्स जो है ना ओरिएंटेड आपको चीजें बताई जाती हैं कि कहाँ से स्टडी मटेरियल कहाँ से पढ़ना है इस चीज को। सो दैट इन दैट आई विल बी इंशाल्लाह हेल्पिंग यू आउट। ओके, अब कोर्स मटेरियल क्या है, कौन सी कोर्सेज पढ़ की किताबें पढ़नी है, आपको पता है, आप सबने ईवीएम पढ़ी हुई है, ड्यूहर्ट्ज पढ़ी हुई है, शॉज आपने कैंसर्स के लिए एक दफा, आई होप कि आपने अपनी रिटर्न के लिए तैयारी के लिए की होगी। कैंसर्स जो है ना वो शॉज में अच्छे हैं, उसके अलावा शॉर्टकट नहीं है उनका कहीं पर, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर वगैरह शॉर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, तो ये काइंडली आपको वहां से देखने पढ़ने। गाइडलाइंस हैं आपके पास, नाइस की भी और ग्रीन टॉप गाइडलाइंस भी हैं। जो आपके पास शॉर्ट केसेस की बुक्स हैं उसमें कुंजे है, ऑक्सफोर्ड की बुक है, और लिसा जोल्स है, आप वहां से कर सकते हो, मरियम इब्राहिम है। और मैं बहुत सारी बुक्स की फेवर में यूजुअली नहीं हूँ। जो लड़कियां वो 5-5 6-6 बुक्स पढ़ती हैं और प्रैक्टिस नहीं करती, सिर्फ बुक्स पढ़ के चली जाती हैं, वो आई डोंट थिंक कि वो पास हो पाती हैं। आप कोई एक बुक पकड़े, एक नहीं तो चले 2 बुक्स पकड़ लें, और वो बुक बेसिकली आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एक मैं सिनेरियो मुझसे सोचा नहीं जा रहा, तो बुक में एक सिनेरियो दिया हुआ है, आपने उस बुक की नहीं पढ़नी, आपने सिर्फ सिनेरियो पढ़ना है और दिमाग में अपनी की खुद बनानी है। 5 मिनट ले लें शुरू में, 10-15 मिनट ले लें, कोई बात नहीं, शुरू में टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, कोई बात नहीं। आप सोचें कि मैं इसको कैसे 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 मैंने बोलना है। आपकी एक स्टडी पार्टनर आपके साथ मौजूद है, उसके साथ बोलें, की मत देखें, की बात में आप देखें कि इसमें से मैंने कितने पॉइंट्स को फॉलो किया, कितने पॉइंट्स को मेरे से फॉलो नहीं हुए, क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने सही बोला। इस तरह से आपने पढ़ना होता है किताब को। ये जो शॉर्ट केसेस की किताबें लड़कियां बस एक खोल देती हैं और पढ़ना शुरू रहती हैं, रट्टा लगाना शुरू रहती है, वो तो सिनेरियो नहीं आएगा ना। सिनेरियो तो एक सेकंड में बैठे बैठे चेंज कर देता है एग्जामिनर, वहां बैठे बैठे आपका सवाल आपके जवाब से अगला सवाल वो चेंज कर देता है। सो कभी भी सिनेरियो आपका ये नहीं हो सकता कि जो किताब में लिखा है वही सिनेरियो एज इट इज उठ के आ जाएगा। मिलते जुलते यस आते हैं, बुक्स आपको हेल्प करती हैं इन द सेंस के
ऑब्वियसली जो आपके जितने भी एग्जामिनर्स हैं जिन्होंने अभी बनाए हैं, सबके तो अभी नया पैटर्न है सारा, सबको तो एकदम से नए सिनेरियोज नहीं आते। सीपीएसपी का भी सिनेरियोज का पूल अभी बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, तो कुछ ना कुछ हेल्प बुक से ली गई है। लेकिन आई एम टेलिंग यू कि सेम डिट्टो बुक का सिनेरियो बहुत ही रेयर होता है कि वो आए, अदरवाइज वो चेंज होकर आता है। तो आपने रट्टा स्ट्रासी नहीं लगाना, आपने बुक्स को हेल्पिंग एड के तौर पर यूज करना है। और उसका करने का तरीका ये है कि आप डोंट लुक एट द की, जस्ट सिनेरियो पढ़ें और खुद से पहले सॉल्व करें, अपनी माइंड स्टॉर्मिंग करें, खुद से सॉल्व करें, देन यू लुक एट द की। इस तरह से बुक्स पढ़नी होती हैं। और ऑब्वियसली मैं आपको कोर्स कराऊंगी, जो कोर्स इंशाल्लाह हम करेंगे उसके अंदर रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाएंगी, और वो रिकॉर्डिंग्स आपके पास मौजूद हैं। अगेन वो आपके पास पूरा इन द एंड आपके पास ई लाइब्रेरी सॉर्ट ऑफ ए थिंग बन जाती है, ठीक है, जिसका एक्सेस आपके पास होती है टिल योर एग्जाम। सो उसमें से आप डेली बेस पर, साथ ही साथ आइडियली तो वैसे आई वुड रिकमेंड कि आप जो कॉपी पेंसिल अपनी बुक लेकर बैठें, और जो कुछ हम पढ़ रहे होते हैं उसका क्लिनिकल सिनेरियो साथ साथ लिखते जाए, नोट्स अपने वही बनाते जाए, क्योंकि आखिर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है वो दोबारा से रिकॉर्डिंग्स 2-2 घंटे की सुने और उनमें से दोबारा से फिर नोट्स बनाए। तो आपने अगर अपनी बुकलेट बना ली साथ के साथ, और ऑब्वियसली उसको आप इम्प्रूव करेंगे, आप किताब खोलेंगे, उसमें से 4 बातें जो हमने हो सकता है ना डिस्कस की वो आप लिखेंगे, ऐड करते जाएंगे, उसको इम्प्रूव करते जाएंगे, एंड पे आपके पास वो बुकलेट पूरी होगी, जिससे आप केस की तैयारी रिवाइज करके आप चले जाएंगे ना, ठीक है। अदरवाइज इट्स यू कैन नॉट डू दैट, देन आपके पास एक ई लाइब्रेरी पूरी मौजूद है, सिनेरियोज मौजूद है। अगेन जो मेड एग्जाम के हम आपको केस सिनेरियोज करवाएंगे उसमें भी आपने की नहीं सोचनी देखनी, आपने एक सिनेरियो पहले देखना है और उसकी आंसर सोचना है, देन आप टेली करें कि जो हमने डिस्कशन की उसमें वो आपकी आपने जो लिखा उसके अकॉर्डिंगली थी कि नहीं, ठीक है। सो बेसिकली स्मार्ट स्टडी का यही होता है कि आपने सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस करनी है और ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रैक्टिस करनी है। आपने आंसर्स देखने नहीं होते, पहले आंसर सोचना होता है, उसके बाद फिर आंसर आपसे उसको मिलाना होता है, सॉर्ट अपनी की से मैच करना। ओके, सो कमिंग टू आवर कोर्स आउटलाइन ऑनलाइन प्रिपरेटरी कोर्स होगा हमारा इंशाल्लाह 3 मंथ्स का कोर्स, तो मेड एग्जाम के साथ में करवाऊंगी। उसमें आपको हम शॉर्ट केसेस करवाएंगे, स्किल की डिमॉन्स्ट्रेशंस होंगी, स्किल्स कौन सी जो हमने डिस्कस की है पूरी अभी एक लिस्ट आपसे डिस्कस की है, और कुछ ना कुछ 1 या 2 सेशंस हमारे पास पेपर्स जो पिछली 2 दफा की टॉक्स आपके आ चुके हैं उन पे भी हम थोड़ी बहुत कोशिश करके डिस्कशन करेंगे, नहीं तो फिर उनकी हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के आपसे शेयर कर देंगे, ठीक है। सो दीज आर ऑल बेसिकली 3 डोमेन्स। सो हम कोर्स फॉर्मेट के लिए हम हिस्ट्री टेकिंग स्टार्ट की क्लासेस में 1-2 क्लासेस में हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे बात करेंगे, जो मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले बात की थी, टेम्पलेट्स, हिस्ट्री के टेम्पलेट्स पे बात करेंगे। एग्जामिनेशन में आपको करवाऊंगी वीडियोस पर, कुछ वीडियोस मौजूद हैं, बाकी जो आपने अपने हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करनी है लेकिन बेसिक एग्जामिनेशन की वीडियोस आपको दिखाऊंगी। डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल्स की, ऑब्वियसली स्किल में आपकी जो ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर आपको प्रैक्टिस उस तरह से नहीं करवा सकते, लेकिन अपनी वीडियोस के जरिए और पॉइंट्स आपको कि बोलना कैसे है, इसको ए टू जेड मॉनिक क्या है, ठीक है। और ऑब्वियसली एक एक स्टेप की हम वीडियो के साथ साथ हम उस चीज को करते हैं, ठीक है, जैसे MRCD 3 के कोर्सेज में होता है। Then obviously we'll be having short cases, scenarios, counseling scenarios, and obviously live sessions. So our course will be comprising of 3 months short cases. Short cases gynae we'll be doing in December, and OBS will be covering OBS in January, and in March, in February, we'll be having talks skill stations. But I would like कि अगर मैं अगर कर सकी तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम पूरा वीक में जो शेड्यूल हमारा होता है उसमें वीकेंड पे ऊपर हम एक स्किल स्टेशंस कर लें। ऑब्वियसली जो बैच आएगा उनसे हम डिस्कशन करेंगे कि हाउ दे वांट टू डू अबाउट इट, बिकॉज जो हम ऐसे मंथली डिवीजन करते हैं, एक मंथ में गायनी, एक मंथ में ऑब्स, और फिर आखिरी मंथ में टॉक्स की स्किल। तो आखिरी मंथ में बहुत सारी लड़कियों के लिए शॉर्ट केसेस का प्रेशर उन पर बहुत होता है कि पिछला वाला जो उन्होंने पढ़ा होता है दे वांट टू रिवाइज दैट। तो उस वक्त हम सिर्फ स्किल्स अगर कर रहे होते हैं तो उनको लग रहा होता है कि हम शॉर्ट केसेस रिवाइज नहीं कर रहे। सो वी कैन ऑल्सो डू दैट कि हम अपनी शॉर्ट केसेस के साथ साथ वीकेंड के ऊपर हम 1 या 2 सेशंस अपने स्किल स्टेशंस के रखें। सो अकॉर्डिंग टू द हमारा कोर्स का बैच जो आएगा ये चीजें हम थोड़ी सी इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये तीनों हम कवर करेंगे, आपको स्किल्स में इंशाल्लाह करवाऊंगी, जो प्रॉपर पूरा जो आपका मेन कोर्स होता है ना उसमें स्किल्स पार्ट होती है। ओके, सो हमारा मेड एग्जाम का जो लॉगिन आप हम एक्सेस कैसे देते हैं, ये जस्ट एग्जांपल है। आप
do not actually follow the what is written over here. Just example आपको बता रही हूँ कि आप हमारे पास मेड एग्जाम की वेबसाइट है, उस पर आप लॉगिन बनाते हो, तो इस तरह से एक आपका सामने आपकी लॉगिन जब आप ओपन करते हो तो इस तरह से आपके सामने एक पेज आता है, ठीक है। उसके अंदर जो जो सेशंस होते हैं वो डेट वाइज, जैसे यहाँ पे शो हुए हैं, डेट वाइज आपको शो होते हैं। और फिर आगे आपने कंप्लीटेड के अंदर एरो लगा हुआ है कि जो जो सेशन आप सुनते जाते हो उसके आगे आपका ग्रीन टिक होता जाता है कि आपने सुन लिया, इतने परसेंट सुन लिया, 30% सुन लिया। तो आपकी जो वेब पे आपका जो लॉगिन होता है बेसिकली, उसमें सारी रिकॉर्डिंग्स आपसे शेयर होती हैं। कुछ रिकॉर्डिंग्स शेयर होती हैं, इसके साथ साथ आपको मैं एवरी सेशन विल नॉट बी अ लाइव सेशन, मोस्ट ऑफ द सेशंस 80 to 90% हमारे लाइव होते हैं। कुछ जो अच्छी रिकॉर्डिंग्स मैंने अपनी की हुई है, कुछ सेशंस में आपको बीच में एक कुछ रिकॉर्डेड सेशंस भी दूंगी, वो भी उनकी एक्सेस की आपको जो जो शेड्यूल के अंदर वो टॉपिक आता जाएगा उसकी एक्सेस आपको दे दी जाएगी, ठीक है। इसी तरह से कुछ स्किल स्टेशंस हो गई, कुछ नाइस गाइडलाइंस की समरीज हमने अपनी बनाई हुई है, ताकि आपको बेसिकली स्टडी मटेरियल बहुत जगह पे ना ढूंढना पड़े। जो जो इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है, जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं, उनकी समरीज की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, जो कि बहुत लंबी नहीं है, 3-3 4-4 स्लाइड्स की हैं, ठीक है। सो वो भी आपसे हम शेयर कर देंगे। किसी स्टूडेंट के पास अगर पूरी की पूरी गाइडलाइन पढ़ने का टाइम नहीं है तो यू कैन गो थ्रू दैट इम्पोर्टेंट समरीज। सो इस तरह से आपका जो लॉगिन होगा ना, उसमें सारी चीजें शेयर हो सकती हैं। और द गुड थिंग अबाउट मेड एग्जाम इज दैट वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैक एंड टीम विच इज विद यू 24/7। आपको चाहे रात का टाइम है, दिन का टाइम है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका लॉगिन खुल नहीं रहा, या कोई आपका कोई सेशन आपको लग रहा है कि अपलोड नहीं हो पा रहा आपकी तरफ, या आपके इंटरनेट में मसला है, वट एवर इज प्रॉब्लम, आवर बैक एंड टीम इज देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। आप किसी भी वक्त मैसेज कर सकते हो, ग्रुप पे मैसेज करो, देयर एंड देन फास्ट रिप्लाई आता है और आपका प्रॉब्लम इंडिविजुअल बेसिस पे सॉल्व किया जाता है। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट मेड एग्जाम, कि सिर्फ हम आपको टीचिंग नहीं देते बल्कि आपको पूरी की पूरी ई लाइब्रेरी की सपोर्ट देते हैं। तो आप जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो आपकी रिकॉर्डिंग की फॉर्म में आपके पास मौजूद होगा। हैविंग सेड दैट, डू नॉट रिलाई ओनली ऑन रिकॉर्डिंग, बिकॉज लाइव सेशंस में जो आप वर्बली प्रैक्टिस करके जो चीज सीख सकते हो वो सिर्फ रिकॉर्डिंग में सुनने से नहीं सीख सकते हो। रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारी मौजूद है, ठीक है। सो सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनने से अगर पास होना होता ना, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक लाइव आके प्रेजेंट नहीं करोगे, मुझे नहीं पता चलेगा कि आपकी क्या गलतियां हैं, क्या आपकी वीकनेसेस हैं। I will work on your individual weakness only if you come up with something, ठीक है। If you hide on, और आप लाइव सेशंस ना अटेंड करो और सोचो कि जो कुछ पढ़ा रही हैं वो रिकॉर्डिंग मौजूद है, सुबह रिकॉर्डिंग सुन ही लूंगी, खाली रिकॉर्डिंग सुनने से पास नहीं होता। आई कैन नॉट हेल्प यू आउट इफ आई डोंट नो कि आप में क्या वीकनेस है, ठीक है। सो जो एक्टिव गर्ल्स होती हैं, जो कि डेली पार्टिसिपेट करती हैं लाइव सेशंस में और वहीं देयर एंड देन नोट्स बनाती हैं, शॉर्ट करके अगर मैं बताऊं तो पास होने का क्या गुर है। लाइव सेशन अटेंड करो, उसी वक्त बुक और कॉपी साथ रखो, उस 2 घंटे के लिए अपने घर वालों को कह दो कि इस 1-2 घंटे में जब मैं लाइव सेशन ले रही हूँ उस टाइम आई एम नॉट अवेलेबल, ठीक है। और वो बेड में सोते हुए नहीं सुन लेना, वो प्रॉपरली बैठ के अपनी डायरी या नोट्स जो भी वट साथ बनाने हैं। और ऑब्वियसली हम तेजी से बोल रहे होते हैं, बहुत चीजें पॉइंट्स लिखे नहीं जाते, एब्रीविएशन छोटा करके लिख लें, उसको बाद में आप नीट कर लें, लेकिन आपकी एक बुकलेट बनती जा रही है ना, साथ साथ सिनेरियो आपने लिख लिया, और वो सिनेरियो फिर आप, अच्छा अक्सर लड़कियां करती हैं कि अपनी तरफ से मोबाइल में सिनेरियोज लिखती हैं या तस्वीरें बनाती हैं, वो बाद में इतनी ज्यादा इमेजेस हो जाते हैं कि वो भी दोबारा देखने का टाइम नहीं मिलता। सो टेक्नोलॉजी इज गुड, लेकिन वो वही बात है कि जंबल ऑफ थिंग्स इतने मोबाइल में आपकी हो जाती हैं कि आप एंड वो वहीं का वहीं होता है। तो साथ ही साथ वहीं पर अपनी बुक में सिनेरियो लिखना है, नोट करना है, या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ कि ये चीज यहाँ से आपने पढ़नी है, ये चीज इधर से करनी है, ये वाला पॉइंट इधर से अच्छा है, वो लिखें। और रिकॉर्डिंग्स पे सिर्फ रिलाई ना करें, अगर आप किसी वजह से लाइव सेशन मिस कर देते हैं देन यस यू कैन हैव रिकॉर्ड, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप सुन सकते हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। क्वेश्चंस हमारे पास थोड़े से आए हैं कि इज इट मैडम मैंडेटरी। आप थ्योरी से लेकर कोई सेशंस कर रही हैं पार्ट 2 की थ्योरी से? सॉरी, थ्योरी के सेशंस जी चल रहे हैं। हमारे पास डॉक्टर अस्मा है और डॉक्टर सुमेरा है। डॉक्टर अस्मा इज टेकिंग मेनली द लीड, ठीक है। वो थ्योरी के रिटन सेशंस हो रहे हैं हमारे। इफ यू वांट टू ज्वाइन सो आवर टीम मेंबर विल कांटेक्ट यू, और वो ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं तो यू कैन ज्वाइन दोस क्लासेस। ओके, आई थिंक नाज ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, इज इट मैंडेटरी टू पास दिस स्टेशन? कौन सा स्टेशन पूछ रही थी नाज आप? आई थिंक एवरी स्टेशन का पूछ रही थी कि हर स्टेशन पास करना जरूरी है कि नहीं।
सो मैंने आपको इसका आंसर दे दिया कि हर स्टेशन पास करना जरूरी नहीं होता, लेकिन आपके एक आधा स्टेशन अगर खराब हो भी जाता है तो बाकी स्टेशन को कंपनसेट कर सकते हैं। हर स्टेशन में 60% आना जरूरी नहीं है आपके लिए। ओके फाइन। अनदर क्वेश्चन इज दैट जो शॉर्ट केसेस लिंक स्टेशंस वाले आते हैं उनको पास करना कंपल्सरी है कि नहीं? इस दफा नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली जो आपका टी ऑस की होती है वो एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर असेसमेंट है, और उसके बगैर पास करना यूजुअली मुश्किल होता है। तो सीपीएसपी कैन चेंज रूल इन दैट सेंस कि कुछ स्टेशंस मैंडेटरी होते हैं। जैसे एनएलई के एग्जाम में होता है ना कि आपके 10 स्टेशंस में से एक या दो स्टेशन मैंडेटरी स्टेशन होते हैं, यू हैव टू पास दो स्टेशंस। इसी तरह सीपीएसपी कैन अडॉप्ट थिंग, पर देर लगती तो नहीं है लोगों को जरा से भी कुछ चेंज होते हुए। सो अगर मैंडेटरी स्टेशन आया तो ऑब्वियसली जो लिंक स्टेशन आएगा ये मैंडेटरी होगा, कि ये मेन स्टेशन होता है आपका ना, एक लॉन्ग केस कन्वर्टेड इनटू लिंक स्टेशन है। तो ये इसको पास करना जरूरी होता है बेसिकली। बाकी जो हर स्टेशन में ना जो पैटर्न होता है ना, उसमें इस टाइम RCU3 का पैटर्न होता है कि आपके जो 5 डोमेन्स हैं उनमें कुछ चीजें एग्जामिनर के लिए बोल्ड कर दी जाती हैं, विच इज मस्ट टू नो नॉलेज। कि अगर स्टूडेंट को ये नॉलेज नहीं आती ना, भले उसके बाद सारा स्टेशन उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये बेसिक पॉइंट नहीं आता तो वो पास नहीं होगा। सो एक आखिर में ना ओवरऑल असेसमेंट का मार्क होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, कि फॉर एग्जांपल अगर बहुत बेसिक चीज होती है, आप डू नॉट वरी अबाउट दैट, वो बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज होगी जो कि आपको FCPS कैंडिडेट को ये इतना जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो बेसिक बात नहीं आती तो फिर आप भले आप मतलब जो मर्जी आगे पीछे की कहानी सारी बताते रहे, लेकिन फिर आप पास नहीं होंगे। तो इसलिए हर स्टेशन में एक मैंडेटरी पॉइंट होता है आमतौर पे, वो ओवरऑल असेसमेंट का पार्ट होता है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। इंशाल्लाह हमारा कोर्स जो है वो 10th दिसंबर से शुरू हो रहा है एट एग्जाम का। यू आर ऑल आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन। इफ यू वांट टू हैव एनी चेंजेस यू कैन टेल आवर टीम मेंबर। और आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोर्स ओरिएंटेशन मैंने आपको दे दिया है। इफ यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग, हाँ मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कि हम लोग यहाँ पे क्लिनिकल गवर्नेंस का एक सेशन इंशाल्लाह रखेंगे, और ऑडिट का, क्लिनिकल रिसर्च का ना, ये सब मिलाकर भी एक क्लिनिकल ऑडिट का भी इम्पोर्टेंट सेशन है जो आई थिंक मैं मिस कर दिया यहाँ पे, लेकिन वो भी हम करवाएंगे इंशाल्लाह आपको। सो कोई और आपको क्यूरी हो, कोई और आप चाहते हो कोई चीज ऐड हो जाए इसमें, तो यू कैन, यू आर मोर देन वेलकम टू टेल अस। and inshallah see you there in our course. Detailed sessions हमारे कोर्स में होते हैं, वीक में हमारे ऑलमोस्ट 2 सेशंस होते हैं, और बाकी टाइम आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। शेड्यूल में ऑब्वियसली जो ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स उनके साथ शेयर करूंगी, और एक मंथ में हम इंशाल्लाह पहले गायनी करेंगे, नेक्स्ट मंथ में ऑप्स करेंगे। बेसिक मैंने आपको आउटलाइन दे दी है, लेकिन यूजुअली डोमेन वाइज या सॉरी मॉड्यूल वाइज हम चीज़ों शेड्यूल करते हैं। एक मॉड्यूल के 2 सेशंस यूजुअली हम कर रहे होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। इंशाल्लाह सी यू अराउंड। अल्लाह हाफिज।